مسیح کے بابرکت اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا تیرا شکر، تیری تعریف۔ آج بہت ہی خوبصورت دن ہے ہمارے لیے کہ وہ ہمارا نجات دہندہ جی اٹھا ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم آج پہلے تلاوت سے شروع کریں گے۔ لوکا کی انجیل نکالیے میرے ساتھ، 24 باب اس کا 1 سے 6 جو ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے اوپر شمع جلاتے ہوئے پڑھا۔ لوکا 24 1 سے 6۔ جس کو خدا کا روح بھائے وہ اونچی آواز میں پلیز اس کو جو ہے نا پڑھیے۔ سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، جی، لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر پر سے لٹکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھیں تو دیکھو 2 شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئیں اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھا اور سنا جنا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ شکر۔ آج ہم کسی عام دن کا ذکر نہیں کر رہے، یہ بہت ہی خاص ہے، بلکہ یہ دن وہ ہے جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل کے رکھ دی۔ ہاللیلویہ۔ جتنے بھی مذاہب ہیں پوری دنیا میں، سب مذاہب میں یہ ایک واحد تاریخ رقم ہوئی ہے جو بے مثال ہے، اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ واقعہ دنیا میں انقلاب لے آیا تھا۔ ہاللیلویہ۔ کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ موت کے بعد زندگی کا ذکر کرتے ہیں۔ جتنے بھی مذاہب ہیں پوری دنیا کے سب ذکر کرتے ہیں پورے یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ، مگر کیا ان کے پاس ثبوت ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے؟ نہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر واحد ہمارے پاس ایسا ثبوت ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ ہمارا خداوند یسوع المسیح جو مر گیا تھا وہ اب زندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس نے موت کو شکست دی ہے، اور اس کے جی اٹھنے سے ہم نے رہائی پائی ہے، ہمیں نجات ملی ہے، اور ہماری امید بھی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ذرا سوچئے کہ اگر یسوع نہ جی اٹھا تو کیا ہوتا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ میں نے ایک پل بھر کے لیے سوچا تھا تو میرے ہوش گم ہو گئے کہ اگر وہ نہ جی اٹھتا تو آج وہ روحانیت نہ ہوتی، وہ نجات نہ ہوتی، ایمان نہ ہوتا، سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا، اور وہ جو پیشن گوئیاں تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہوتی۔ ہاللیلویہ۔ مگر آج ہم پورے ایمان سے اس کے جلال سے مامور ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ وہ جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی رکھا ہے میں نے کہ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ آہستہ آہستہ جب میں بولوں تو آپ نے میرے ساتھ یہ ریپیٹ کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جی، اور یہ ضرور تھا کہ وہ جی اٹھا۔
यस्सु के बारे में पुराने अहदनामे में बहुत सी पेशन गोइयां हुई हैं, बहुत सी। उन पेशन गोइयों को हम देखते हैं आज के मैसेज में। और मैं सिर्फ आज टॉपिक, क्योंकि मैंने पहले भी टॉपिक इस पे बात कर चुका हूं कि हमारी निजात क्या है। हमारी निजात मैं पहले भी बता चुका हूं कि उसने वो पर्दा चाक किया है, उसने वो रास्ता क्लियर किया है, वो पताल से रूहों को आजाद किया है। ये सब मैं पहले एक टॉपिक कर चुका हूं। मगर आज जो बात करेंगे वो सिर्फ एक मखसूस कि वो आज जी उठा है। हालेलुया। तो पहले देखिए, खुदा ने पहले ही अपने नबियों के जरिए पेशन गोइयां की हैं कि वो मरेगा और मौत पर फतह पाएगा और जी उठेगा। ज़बूर निकालिए मेरे साथ, 16 ज़बूर, उसकी 10 आयत मेरे साथ प्लीज पढ़िए। 16 ज़बूर। क्योंकि तू ना मेरी जान को पताल में रहने देगा, हालेलुया। ना अपने मुकद्दस को हालेलुया। सड़ने देगा। आमीन आमीन। तू मेरे नफ्स को पताल में ना छोड़ेगा, ना अपने मकदस को सड़ने देगा। वो कह रहा है कि वो जो मुकद्दस है वो पताल में तू नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब कि यस्सु मोया कब्र में उतरा, जमीन में रहा, पताल में गया और जी उठा, उसकी कब्र खाली हो गई। हालेलुया। यानी वो यहाँ नहीं है बल्कि जी उठा है। हालेलुया। ऐसे ही जैसे जैसे मैं कहूँ साथ में आपने जो है मेरे रिपीट करना है। और एक और पेशेंट को देखिए, यशाया की किताब निकालिए मेरे साथ। यशाया 53 बाब, उसकी 10 और 11 आयत। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा और उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और सेर होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादिम बहुतों को राज़बाज़ ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। आमीन आमीन आमीन। वो कुर्बान होगा और फिर अपनी नस्ल को देखेगा। सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर कोई मर गया है तो क्या वो देख सकता है? नहीं। इसका मतलब यह है कि वो मरा तो जरूर था मगर जी उठा है। वो आज जिंदा है, वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। हालेलुया। फिर होश की किताब निकालेंगे, उसकी 6 बाब और उसके 2 आयत। वो 2 रोज के बाद हमको हयाते जिंदा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा और हम उसके हुजूर जिंदगी बसर करेंगे। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, वो तीसरे रोज उठ खड़ा होगा। हालेलुया। ये भी पेशन गोई है। ये पेशन गोइयों की बात हो रही है तो मैं सब आपको वाज़ेह कर रहा हूं कि ये पेशन गोइयां हैं कि वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। हालेलुया। ये तो वो पेशन गोइयां हैं जो पुराने अहदनामे में खुदा ने अपने नबियों के जरिए से की हैं कि वो आएगा, मोएगा, दुख उठाएगा, वो सलीब पर और वो फिर जी उठेगा। हालेलुया। अब हम देखें कि यस्सु ने खुद कई दफा बयान किया है कि मैं मोऊंगा और जी उठूंगा। हालेलुया। मत्ती की इंजील निकालिए मेरे साथ, 12 बाब। मत्ती की इंजील 12 बाब, उसकी 40वीं आयत। क्योंकि जैसे यूहन्ना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3
रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। आमीन। आमीन आमीन। जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन में रहेगा। क्या लिखा है जी? मैंने कई दफा बोला है कि बाइबल में एक एक लफ्ज मायना रखता है, तो लिखा है रहेगा, रहा नहीं है, रहेगा, अब नहीं है, वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। हालेलुया हालेलुया। फिर हम इसको देखें, मरकस की इंजील निकालिए मेरे साथ। मरकस उसका 8 बाब, मरकस 8 बाब और इसकी 31वीं आयत। 31। फिर वो उनको तालीम देने लगा, जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीर उसे रद्द करे और वो कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। हालेलुया। क्या है जी? वो 3 दिन के बाद जी उठे। तो वो अपने वादे के मुताबिक जी उठा है। उसने कहा कि वो जी उठेगा, तो वो आज जी उठा है। हालेलुया। लूका की इंजील निकालिए, लूका की इंजील उसका 9 बाब, लूका 9 और उसकी 22वीं आयत। और कहा, जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीर उसे रद्द करे और वो कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। ये सेम वर्डिंग जो हमने पहले अंजील में पढ़ी है, सेम वर्डिंग वही इसमें भी लूका में लिखी है, क्योंकि लूका एक तबीब था और लूका सबसे पेशनगोइयां कर कर और लूका तस्दीक कर कर ये जो न लिखता था, और ये तस्दीक शुदा है कि वो जी उठा है, कि उसने कहा कि ये हैकल को कि तीसरे दिन वो जी उठेगा। हालेलुया हालेलुया। वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। यूहन्ना की इंजील निकालिए, उसका 2 बाब उसकी 19 आयत। यूहन्ना 2 बाब। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मुकद्दस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। आमीन आमीन। यहां पर यीशु ने अपने आप को छवि दी है उस हैकल से, उस मकदस से, कि अगर तुम इसको ढा दो तो मैं इसको 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वो उसने अपने आप की बदौलत बात की है। ये यहां पर इसका ये मकसद है, वो यहां नहीं है बल्कि जी उठा है। ये कोई इत्तेफाक से सब नहीं हो रहा, ये इत्तेफाक की बात नहीं है, ये पूरे प्लान्स के साथ हो रहा है। जो भी हुआ है पूरे प्लान के साथ हुआ है, जो खुदा का अजल से इंसान की रिहाई के लिए प्लान था। क्योंकि मैंने पहले बात कर चुका है इस पर भी कि आदम ने गुनाह किया और हम उस खताकार ठहरे। उसकी रिहाई जो थी वो आज खुदा की लाजवाल मोहब्बत है हम पर, कि आज उसने अपने इकलौते बेटे को हम पे ये निछावर किया है कि वो हमारा फिदिया देकर हमारा निजात दहिंदा बने। हालेलुया हालेलुया। वो जी उठा है। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि हमने जो मरकजी आयत हमने जो पढ़ी है लूका की 24 बाब उसका 1 से 6 हमने जो पढ़ा था, हम उसको देखते हैं। वहां पर देखें, औरतें, उन औरतों को मसीह से मोहब्बत है। वो औरतें जो आई हैं खुशबूदार चीजें लेकर, जो कब्र पर पहुंची हैं, वो मसीह से मोहब्बत रखती हैं। क्योंकि आज जो हम इकट्ठे हैं तो किसकी मोहब्बत में इकट्ठे हैं? मसीह की मोहब्बत में इकट्ठे हैं। तो उनको मसीह के साथ मोहब्बत है, तब ही वो वहां पर मौजूद हैं। वो सुबह सुबह खुशबूदार चीजें लेकर वहां पर पहुंची हैं और वो वहां पर मौजूद हैं। मगर गौरतलब बात यह है कि क्या उनका ईमान मजबूत है या कमजोर? वो मोहब्बत तो खुदा से
यीशु से है, उनकी अकीदत है, बिल्कुल है। उनकी मोहब्बत, मेरे लफ्जों को गलत मायना ना दीजिएगा, मैं जो कहना चाह रहा हूं आप मेरे लफ्जों को गलत मायना या गलत तरफ लेके उसकी डायरेक्शन चेंज ना कीजिएगा, ताकि आप बाद में कहें कि वो औरतें बहुत मकबूल और वो जो यीशु के साथ रही हैं वो मोहब्बत वाली थी और वो ईमान वाली थी, और जो ना आप मेरी डायरेक्शन को चेंज करें। मैं जो गौर तलब बात करना चाहता हूं आप उसको देखिए। मैं कह रहा हूं कि जरूर वो यीशु के साथ थी, वो यीशु के ताबिया रही, वो खिदमत गुजार थी, सब चीजें मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक है, मगर यहां पर उनका ईमान डोल गया है, कमजोर है। क्योंकि अगर वो ईमान रखती जो उसने कहा लफ्ज बाय लफ्ज, तो उनको मालूम होता कि वो कब्र खाली है, वो जी उठा है अपने कॉल के मुआफिक, मगर वो वहां पर आई। हालेलुया। फिर आगे देखिए, पत्थर जब उन्होंने देखा तो पत्थर को लुढ़का हुआ पाया। कब्र पर पत्थर नहीं है। जब खुदा प्लान करता है ना आपके मुस्तकबिल के लिए हो, आपकी रिहाई के लिए हो, आपकी निजात के लिए हो, जब खुदा प्लान करता है तो खुदा सब तरतीब देता है, वो सारी चीजों का तरतीब देता है। यहां पर उसको किसी की जरूरत नहीं है। पत्थर बहुत बुलंद और वजनी वो वहां पर रखा है, उसको लुढ़का हुआ पाया तो वो खुदा ने पहले से मंसूबा तैयार किया है कि वो यहां पर मौजूद नहीं है। हालेलुया। फिर आगे देखें, कब्र उन्होंने देखा तो कब्र खाली मिली उनको, वो कब्र खाली पाई उन्होंने। मसीह के बारे में जितनी भी पेशन गोइयां हैं वो आज पूरी हो गई कि कब्र उसकी खाली है। उन्होंने देखा कब्र खाली है, तो पहली बात तो एक और गौरतलब बात यह है कि कोई भी शख्सियत जब मरती है तो क्यों ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जना सिपाही ला देते जाते हैं, तो मर गया खत्म। मगर वाहिद यीशु है कि जिसके मोने के बाद भी बाहर सिपाही बिठाए गए हैं, क्योंकि उनके जहन में जो उसके मुखालिफ थे, उनके जहन में बात यह है कि उसने जो कहा क्या वो अपने कौल के मुआफिक वैसा ही होगा, तो उन्होंने वहां पर सिपाही भी बिठाए हैं, मगर वो उनकी चाल किसी काम ना आई, क्योंकि खुदा ने जो प्लान किया है अज़ल से वो पाया तकमील तक पहुंच गया है। हालेलुया। और फिर दूसरा देखिए कि वो डर गए। जब भी खुदा की हुजूरी हम पर आती है, खुदा का मसा पर आता है, जब आपकी जिंदगी में अजीब काम होते हैं तो यकीनन हम इंसान होने के नाते थोड़ा सा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हमें उन चीजों की आदत नहीं होती जो एकदम सडनली हमारी जिंदगी में होता। हालेलुया। तो यहां पर वो डर गई। और दूसरा, अब फरिश्तों ने उससे क्या कहा है जी, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। हालेलुया। हम वो जो बात उन्होंने फरिश्तों ने जो उससे कही है औरतों से, वो उसी बात की अलामत है कि क्या तुम अभी भी वो पुरानी सोच की मालिक हो, क्या अभी भी पुरानी सोच में हो कि जो अजीब वो मुशीर है, वो कादिर है, वो कुछ भी कादिर करने के लायक है, तुम उसको नहीं जानते। तो वो यहां पर उन्होंने कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। खुदा अपने मंसूबे के मुताबिक काम कर चुका है, उसने कर दिया है अपने वादों को, वो क्योंकि वादों का सच्चा और अटल है, वो अपने वादों के कौल के मुआफिक जो कहता है वो करता है। और हमारी सोच दंग रह जाती है, हमारी सोच दंग है, वो वहां पर भी काम करता है। हालेलुया। और
यहां पर देखें तो जो कुछ ज़बूर में लिखा वो पूरा हुआ, यशाया में जो कहा वो पूरा हुआ, होश की किताब में जो लिखा वो पूरा हुआ, यस्सु ने जो खुद फरमाया वो पूरा हुआ। हालेलुया। ये सब बातें पूरी हुई हैं। खुदा का कलमा सच्चा, वो अटल है, बरहक है, उसका एक एक लफ्ज बेमायना नहीं है। हालेलुया। वो बेमायने बात नहीं करता, वो हर चीज का मायना है, एक एक लफ्ज का। बाइबल में एक एक लफ्ज का मतलब है, और खुदा अपने वादों का सच्चा है और वफादार भी। यस्सु जिंदा है और रब्बुल फाज के दाहिने हाथ पर बैठा है। हालेलुया। और यही हमारा ईमान है, और उसी ईमान में आज हम सब इकट्ठे हैं। हालेलुया। और कुछ लोग आज भी गलत जगह तलाश कर रहे हैं यीशु। जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो जब ईमान की कमजोरी होती है हमें, तो हम गलत जगहों पे तलाश करना शुरू हो जाते हैं, बुत परस्ती की तरफ माइल हो जाते हैं, या उन कब्रों को जिनमें मुर्दा पड़े हुए हैं उनको सजदा करना शुरू हो जाते हैं। ये गलत तरफ हमें लेके जाता है। कुछ लोग आज भी अपनी दुनिया में सुकून तलाश करने के चक्कर में, खुशी तलाश करने के चक्कर में, माजी तलाश करने के चक्कर में, वो अपने दूसरों को देवता बना लेते हैं, अपने खुदा किसी और को बना लेते हैं, शख्सों को निजात दहिंदा मुकर्रर कर लेते हैं। मगर आज खुदा आपसे क्या कह रहा है? खुदा अपने बेटे के वसीले से आपसे बात कर रहा है कि आप अपने दिलों को खोल दीजिए, जैसे उसने अपने दरवाजों को पर्दा चाक कर कर आपसे वो सारी बैरियर्स हटाए हैं ना, तो आप भी अपने दिलों का पर्दे को चाक कीजिए, खोलिए दिलों को, ताकि वो अंदर आए। वो जो जी उठा है वो आपके दिलों में आकर आपके दिलों में बसेरा करे। दिल दा बुआ को वो है बात कि आप अपने दिलों को खोलिए। उसने अपनी लाजवाल मोहब्बत दिखाई है, तो आपको भी फरमाबरदार बनना है उसका, आपको भी उसके हुजूर में आना है। आज उसने अपने बेटे को आपके लिए जो है ना यहाँ पे कुर्बान कर दिया है, तो ये आपको सोचना है कि आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ओ खुदा कुदूस, आज आसमान ये बुलंद आवाज से कह रहा है, आसमान, जमीन, धरती, जैसे मैंने पहले कलाम में बोला कि पत्थर भी चिल्ला उठेंगे, आज सदाएं गूंज रही हैं कि वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। उसकी कब्र खाली, मौत पर फतह, और वो जी उठा है। हालेलुया। ये कोई कहानी नहीं है कि मैं कोई बुक पढ़ी है तो उन्होंने मैं तो कहानी नहीं है, ये सच्चाई है कि कब्र खाली है। कोई भी ऐसा नबी या शख्स या कोई भी ऐसा जो ना नहीं है जिसकी पेशन गोइयां 100% क्लियर हो और वो पूरी हुई हो। ये वाहिद जात यस्सु है जिसकी पेशन गोइयां ए से जेड तक कंप्लीट हुई हैं। जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे ही हुआ। ये वाहिद जात है जिसकी अव्वल, मतलब वो कहता है कि मैं अव्वल हूं, आखिर हूं, वो अज़ल से है। और वो प्लान जो खुदा का अज़ल से है, वो वक्फे वक्फे से आपको वो जो है ना कन्वे करता रहा कि वो आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। हालेलुया। और इसका सबूत जैसे मैंने शुरू में कहा कि इसका सबूत हमारे पास है कि वो जी उठा है, क्योंकि कोई भी मजहब में किसी भी नबी को कोई भी ऐसा नहीं है जो मौत के बाद जिंदगी को जाहिर कर सके।
क्या किसी मरे हुए शख्स ने आके ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? नहीं, वाहिद यस्सु जिनने क्या कि मैं हूं, वो ही है। तो यह भी गल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਸਟ मैं ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੇ तो वहां मुकाशफा की किताब में सब पूरी मुकाशफा पहला बाब उसकी 17 से 18 जी पढ़िए। जब मैंने उसे देखा कि उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया, खुदाए कुदूस ये वाहिद जात है जो अपना इकरार वो आके वहां पर मौजूद कह रहा है कि मैं जो मर गया था अब जिंदा हूं। वो आसमान पर है, वो आखिर है, वही है, वो शुरू है, वो आखिर है, वो इंतहा है। हालेलुया। और वही अब्दुल आबाद, अब्दुल आबाद का मतलब हमेशा। हालेलुया, वो हमेशा से है और रहेगा। आप रहे, हम रहे या ना रहे, उसका नाम रहेगा। हालेलुया। मैं आखिर में एक शेर के साथ इसको वाइंड अप करूंगा। वो कब्र में ना रहा, वो कब्र में ना रहा, ये राज खुल गया। वो कब्र में ना रहा, ये राज खुल गया। अंधेरा हार गया, उजाला जल गया। सलीब की खामोशी अब फतह की सदा है। सलीब की खामोशी अब फतह की सदा है। जो मर गया था कल वो आज फिर हमारे साथ है। हालेलुया। ना मौत रोक सकी उसे, ना मौत रोक सकी, ना पत्थर थाम सका। ना मौत रोक सकी, ना पत्थर थाम सका। वो जी उठा है, जमाना ये मान चुका। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी ईस्टर।